यहाँ पर हमें वैल्यू ढूंढनी है 2 रेज टू -3 प्लस 3 रेज टू -2 की। सो 2 रेज टू -3 प्लस 3 रेज टू -2, ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 क्यूब प्लस, और अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर। अब 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो ये आ जाएगा 1/8, एंड 3 स्क्वायर की वैल्यू है 9, सो दिस विल बी 1/9। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हम इक्वलाइज कर देते हैं, सो 9 into 1 दैट्स 9 प्लस 8 into 1 ये आएगा 8 divided by 8 into 9, so that is 72. Numerator if we add, ये आ जाता है 17 divided by 72. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, that is 256 into a raised to 8 upon b raised to -16, the whole thing raised to 1/8. अब ये टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 256 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 raised to 8 into नेक्स्ट इज a raised to 8, और ये b raised to -16, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं ये हो जाएगा b raised to 16, the whole thing raised to 1/8. And now if we use the law of indices, ये आ जाएगा 2 raised to 8 raised to 1/8 into a raised to 8 raised to 1/8 into b raised to 16 raised to 1/8. अब ये 8 और ये 8 हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ पर भी 8 और 8 कैंसिल हो जाता है, सो वी हैव a, and 8 1s are 8 2s are 16, so we have b square. So our final answer is 2b square, sorry 2ab square, और अगर हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर तो सही आंसर आता है ऑप्शन ए। अब इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू ढूंढनी है, तो गिवन एक्सप्रेशन जो है वो है 3 raised to 4 the whole cube into 4 cube the whole thing raised to 4 into 5 raised to 4 the whole square divided by 3 cube raised to 4 into 4 raised to 4 the whole thing raised to 3 and 5 square raised to 4. अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडाइसेस ये वाला यूज करेंगे, a raised to m raised to n is a raised to m into n. तो ये जो पहला टर्म है ये हो जाएगा 3 raised to, now 4 3s are, this becomes 12 into 4 raised to, now 3 into 4 ये भी आता है 12 into 5 raised to 4 into 2 that gives us 8 divided by, अब डिनोमिनेटर में we have 3 into 4 that's 12, so 3 raised to 12 into 4 raised to, now 4 3s are, this is also 12 into 5 raised to, now 2 4s are, ये हो जाएगा 8, so 5 raised to 8. Now if we see 3 raised to 12 3 raised to 12 ये cancel out हो जाता है, 4 raised to 12 cancels with 4 raised to 12, 5 raised to 8 cancels with 5 raised to 8.
So what we are left is with 1. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1. एंड अगर ऑप्शन देखें so the answer is option D. 4 raised to 3.5 is to 2 raised to 5 is the same as. तो यहाँ हमें दिया है 4 raised to 3.5 is to 2 raised to 5. तो 4 को हम लिख सकते हैं as 2 square and the whole thing raised to 3.5 divided by 2 raised to 5. Now 2 times 3.5 ये हो जाता है 7. So this could be written as 2 raised to 7. यहाँ पर laws of indices use किया हमने, divided by 2 raised to 5. Again, if you use laws of indices, this becomes 2 raised to 7 minus 5. So that is 2 square. Now 2 square होता है 4. So we have the answer as 4. या फिर रेशियो फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं as 4:1. So the correct answer is option A. यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑब्टेन करनी है और जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है 2 raised to half into 4 raised to 3 by 4 into 8 raised to 5 by 6 into 16 raised to 7 by 8 into 32 raised to 9 by 10. This whole thing raised to 4 and further आगे दिया है ये पूरा टर्म raised to 3 by 25. अब अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो 4, 8, 16, 32 ये सब पावर्स ऑफ 2 में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. So what we have is ये आएगा 2 raised to half. अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 square raised to ये आ जाएगा 3 by 4. Then 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं as 2 cube raised to 5 by 6. 16 could be expressed as 2 raised to 4 raised to 7 by 8 and 32 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं as 2 raised to 5 raised to 9 by 10 and ये 4 और ये 3 by 25 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 4 3s are that's 12. ये ब्रैकेट चाहे हम बंद कर देते हैं and these two can be multiplied. 4 3s are 12 by 25. अब ये अंदर का ब्रैकेट पूरा सिंप्लीफाई करते हैं हम. So we have 2 raised to half into. अब ये 2 यहाँ पर हम कट कर सकते हैं. 2 1s ये 4 कैंसिल आउट हो जाता है तो ये आ जाता है 2 raised to 3 by 2. Similarly we have 3 1s 3 2s 6 तो यहाँ आएगा 2 raised to 5 by 2. Again over here 4 1s 4 2s is 8 तो ये आता है 2 raised to 7 by 2 and then 5 1s 5 2s is 10 तो लास्ट टर्म ये आता है 2 raised to 9 by 2. The whole thing raised to 12 by 25. And now बेस तो सेम है तो पावर्स हम क्या कर देते हैं ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा 2 raised to half plus 3 by 2 plus 5 by 2 plus 7 by 2 plus 9 by 2. The whole thing raised to 12 by 25. तो ये ऐड करने पर
Now we have 1 plus 3 4 and 5 is 9 and 9 18, 18 and 7 is 25. तो यहाँ टोटल आता है 25 by 2 raised to 12 by 25. अब ये 25 हम कट कर सकते हैं. 2 1 जा 2 6 जा 12 आता है. So finally we have the value 2 raised to 6. अब 2 raised to 6 की वैल्यू होती है 64. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. तो इसका सही आंसर है 64, which is option B. On simplification, the given expression reduces to. तो पहले ये given expression लिखते हैं हम. 2 raised to x plus 3 into 3 raised to 2x minus y into 5 raised to x plus y plus 3 into 6 raised to y plus 1 divided by 6 raised to x plus 1 into 10 raised to y plus 3 into 15 raised to x. अब यहाँ पर जो बेस है वो है 2, 3, 5, 6 है, 10 है और 15 है. तो 6 को हम 2 into 3 ये वैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. तो बेस हमारा 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. वैसे ही 10 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 2 5s है, तो फिर से बेस 2 and 5 आ जाएगा. और इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 3 into 5, तो बेस आ जाएगा 3 and 5. सो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 3 ही बेस वैल्यूज पे होगी, 2, 3 and 5. तो ये 6, 10 और 15 को हम पहले फैक्टराइज कर देते हैं. सो वी हैव 2 raised to x plus 3 into 3 raised to 2x minus y into 5 raised to x plus y plus 3 into, इसे फैक्टराइज करते हैं as 2 times 3, the whole thing raised to y plus 1. अगेन डिनोमिनेटर में 6 को हम फैक्टराइज करेंगे as 2 3s are. So 2 into 3 raised to x plus 1. 10 को फैक्टराइज करेंगे as 2 into 5 raised to y plus 3. और 15 को हम फैक्टराइज करेंगे as 3 into 5 raised to, ये आ जाएगा x. अब ये 2 और 3 दोनों को ये पावर मिलेगा y plus 1. यहाँ भी 2 and 3 को पावर मिल जाएगा x plus 1. सिमिलरली 2 and 5 इसको, ये दोनों को हम पावर देंगे y plus 3 यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस. a into b raised to m is a raised to m into b raised to m. वो वाला प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ये चार टर्म्स पे. सो लेट अस सिंप्लीफाई. ये 2 raised to x plus 3, फिर आएगा 3 raised to 2x minus y, 5 raised to x plus y plus 3. ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. सो 2 raised to y plus 1, फिर आएगा 3 raised to y plus 1 और नीचे 2 raised to x plus 1, फिर आएगा 3 raised to x plus 1. देन ये दो टर्म्स 2 raised to y plus 3 into 5 raised to y plus 3 into, ये दोनों को हम पावर देंगे x. So 3 raised to x into 5 raised to x. अब सारे बेस 2 टर्म्स, बेस 3 टर्म्स एंड बेस 5 टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर देते हैं. फिर आएगा 2 raised to, सो 2 के सारे पावर्स हम ऐड और सबट्रैक्ट कर देते हैं. यह आएगा x plus 3. देन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगा. सो प्लस y plus 1, फिर ये अपॉन में है 2 raised to x plus 1, ऊपर जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -x minus 1.
देन ये भी 2 का पावर है, न्यूमरेटर में अगर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -y -3। तो ये 2 के सारे पावर्स हमने एक साथ ले लिए। फिर वैसे ही 3 के पावर्स, इधर है 2x -y, देन हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऐड हो जाएगा +y +1। इधर डिवीजन में है ये अपॉन में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -x -1, और ये 3 है ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा इसका पावर -x। वैसे ही 5 के पावर्स हम कलेक्ट कर लेते हैं। सो वी हैव फर्स्ट वन x + y +3, ऊपर और कोई 5 वाला टर्म नहीं है, ये वाला है टर्म नीचे, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -y -3, और ये जो x है ये भी अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा -x। सो देखते हैं क्या रहता है इधर, 2 ये x -x गया, देन 3 एंड -3 +y -y +1 -1, सो बेसिकली दिस इज 2 ये आएगा 3 -y +1 -1, ये हो गया हमारा -2x, और ये पॉजिटिव 2x, तो ये इन दोनों के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 एंड 5 का टोटल पावर देखते हैं, x -x +3 -3 +y -y, ये भी आएगा 0। So 2 is 1, 3 is 1, 5 is 1. So final जो इनका प्रोडक्ट है that is equal to 1. एंड ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। The expression x raised to a upon x raised to minus b the whole raised to a square minus ab plus b square into x raised to b upon x raised to minus c the whole thing raised to b square minus bc plus c square into x raised to c upon x raised to minus a the whole thing raised to c square minus ca plus a square। इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब ये अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये दो कंबाइन होके बन जाएगा x raised to a minus minus b, तो माइनस ऑफ माइनस b बिकम्स प्लस b, तो ये हो जाएगा x raised to a plus b raised to a square minus ab plus b square। सिमिलरली ये माइनस c अगर हम ऊपर ले जाते हैं, so this would become x raised to b minus of minus c, so that is b plus c, the whole thing raised to b square minus bc plus c square। और वैसे ये तीसरा टर्म होगा x raised to c plus a, the whole thing raised to c square minus ca plus a square। Now we know that a plus b into a square minus ab plus b square, इन दोनों का product is actually a cube plus b cube का expansion. So this could be written as x raised to a cube plus b cube. See, we know that a cube plus b cube, इसे हम factorize कर सकते हैं as a plus b into a square minus ab plus b square। तो हमें रिवर्स जाना है, तो ये प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं as x raised to a cube plus b cube। सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय b cube plus c cube, एंड तीसरा जो टर्म है तो x के पावर में आएगा c cube plus a cube, एंड नाउ तीनों बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, सो दिस बिकम्स x रेज टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब। So finally we have x raised to
2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। अगर ये 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा 2 टाइम्स a क्यूब plus b cube plus c cube. So if we verify with the options, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 upon 1 plus z raised to a minus b plus z raised to a minus c plus 1 upon 1 plus z raised to b minus c plus z raised to b minus a plus 1 by 1 plus z raised to c minus a plus z raised to c minus b reduces to। अब यहाँ पर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 1 है पहले टर्म में डिनोमिनेटर का 1, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय z raised to a minus a। देखिए तो ये हो गया 1 अपॉन ये वाला जो 1 है इसे हम रिप्लेस करते हैं बाय z रेज टू a माइनस a। तो a माइनस a तो 0 होता है एंड z रेज टू 0 होता है 1। सो 1 इज रिप्लेस्ड बाय z रेज टू a माइनस a। बाकी के टर्म्स हम एज इट इज रहने देते हैं। ये आएगा z रेज टू a माइनस c। वैसे ही सेकेंड टर्म में ये जो 1 है इसे हम रिप्लेस करेंगे बाय z रेज टू b माइनस b। फिर आएगा प्लस z रेज टू b माइनस c प्लस z रेज टू b माइनस a। एंड आखिर में यहाँ पर तीसरे टर्म में 1 अपॉन दिस 1 वी कुड रिप्लेस बाय z रेज टू c माइनस c plus z raised to c minus a as it is plus z raised to c minus b as it is। अब ऐसे करने से अगर हम देखें ये तीनों में से हम z raised to a कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर z raised to a कॉमन फैक्टर लेते हैं तो पहला टर्म रह जाएगा z raised to minus a, फिर आएगा प्लस z raised to minus b and then plus z raised to minus c। वैसे ही दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर में से हम z raised to b ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। सो इन ब्रैकेट्स we'll have z raised to minus b plus z raised to minus c plus z raised to minus a। देखिए दोनों टर्म्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं। वैसे ही तीसरे टर्म के डिनोमिनेटर में से हम z रेज टू c कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा z रेज टू माइनस c प्लस z रेज टू माइनस a प्लस z रेज टू माइनस b। अब ये z रेज टू a अगर न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाता है तो ये हो जाएगा z रेज टू माइनस a। ये जो z रेज टू b है इसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा z रेज टू माइनस b, और इसे अगर हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा z रेज टू माइनस c। और ये देखिए ये वाला जो टर्म है दिस टर्म एंड दिस टर्म तीनों वन एंड द सेम है। तो अपॉन में हम लिख सकते हैं z रेज टू माइनस a प्लस z रेज टू माइनस b प्लस z रेज टू माइनस c। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो है 1। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1। If 3 raised to a is equal to 5 raised to b is equal to 75 raised to c, then the value of ab minus c times 2a plus b is। तो यहाँ पे हम k मेथड से ये वैल्यू इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। So suppose we consider 3 raised to a equal to 5 raised to b equal to 75 raised to c, let these three be equal to k। अब कंसिडर करते हैं 3 raised to a equal to k। अब a यहाँ पे पावर है, इसे अगर इस तरफ ट्रांसफर करें तो वो हो जाएगा रूट।
यानी हमें मिलेगा 3 is equal to, so a becomes 1 by a, तो ये हो जाएगा k raised to 1 by a. नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 5 raised to b equal to k. अगर ये कंसिडर करते हैं, अगर b को इस तरफ ट्रांसफर किया, सो हमें मिलेगा 5 is equal to k raised to 1 by b. एंड लास्टली अगर हम ये कंसिडर करते हैं 75 raised to c equal to k, so therefore we have 75 is equal to c. अगर इस तरफ चला गया तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा k raised to 1 by c. अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू 75 है, इसे हम इन टर्म्स ऑफ 3 एंड 5 में फैक्टराइज कर सकते हैं. सो 75 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 25 into 3 is equal to k raised to 1 by c. 25 को हम लिख सकते हैं एज 5 square into 3 is equal to k raised to 1 by c. अब यहां से हमें मिल जाएगा 5 की वैल्यू. 5 is nothing but k raised to 1 by b, तो ये 5 को रिप्लेस कर देते हैं k raised to 1 by b से, the whole square into 3 को हम रिप्लेस करेंगे k raised to 1 by a के साथ. so k raised to 1 by a is equal to k raised to 1 by c. Further 1 by b into 2, ये हो जाएगा 2 by b. so this becomes k raised to 2 upon b into k raised to 1 by a is equal to k raised to 1 by c. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है टर्म्स का, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा k raised to 2 by b plus 1 by a, और यहाँ पे k raised to 1 by c. बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं. so therefore we have 2 upon b plus 1 upon a is equal to 1 upon c. अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2a plus b upon ab is equal to 1 by c. Now let us cross multiply. इसी इस तरफ ले लेते हैं. so c into 2a plus b is equal to, ये इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ab. so therefore अगर ये टर्म हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, ये पॉजिटिव है, इधर जाके हो जाएगा ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ab माइनस c टाइम्स 2a प्लस b, और यहाँ रह जाता है 0, और यही वैल्यू हमें चाहिए ab माइनस सी टाइम्स 2a प्लस बी. तो हमारा आंसर आता है 0. ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0. If 2 raised to a is equal to 3 raised to b is equal to 6 raised to negative c, then the value of 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है 1 by a plus 1 by b plus 1 by c की, और यहाँ पे हम k मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं. सो सपोज हम 2 raised to a equal to 3 raised to b equal to 6 raised to minus c, इसको हम ले लेते हैं as k. so therefore अगर हम 2 raised to a इसको कंसिडर करते हैं इक्वल टू k, अब a यहाँ पे पावर है, इस तरफ अगर ट्रांसफर कर देंगे तो a हो जाएगा रूट. सो वी हैव 2 is equal to k raised to 1 by a. the power converts to root. वैसे ही सेकेंड वैल्यू लेते हैं 3 raised to b equal to k. अगेन b इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं. so we have 3 is equal to k raised to 1 by b, and 6 raised to minus c, इसको equal to k लेते हैं तो हमें मिलेगा 6 is equal to,
अब माइनस सी का यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k रेज टू माइनस 1 बाय सी। अब फर्दर 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 2 इंटू 3। देखिए ये 6 को हम फैक्टराइज कर देते हैं एज 2 इंटू 3 इक्वल टू k रेज टू माइनस 1 बाय सी। अब 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं k रेज टू 1 बाय a से, तो 2 को हमने रिप्लेस किया बाय k रेज टू 1 बाय a इनटू 3 को हम रिप्लेस करेंगे k रेज टू 1 बाय b के साथ, तो इनटू k रेज टू 1 बाय b इज इक्वल टू k रेज टू माइनस 1 बाय c। अब बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। सो k रेज टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू k रेज टू माइनस 1 बाय c। अगेन दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी हैव 1 बाय a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू माइनस 1 बाय c। अब इसे लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं ये c वाले टर्म को। सो देयरफॉर 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c इसकी वैल्यू आती है 0। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।